Hello, welcome students. Today we are going to start the next topic, operating system. Computer is a machine and it cannot do anything by its own. It requires specific instruction on how to perform each and every task. हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना होता है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है, और उसके बिहाफ पे हमारा जो कंप्यूटर है वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है. The instructions are to be converted in a language which a machine understands. It means that the user cannot communicate with the computer directly. Thus, we require an interface between user and hardware. That means us, like users, and computer hardware like keyboard, mouse, whatever. The operating system acts like an interface. जो ये इंटरफेस होता है यूज़र और कंप्यूटर के बीच में, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. अब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये होता है कि जब यूज़र कोई रिक्वेस्ट करता है या कोई डेटा इनपुट करता है तो उसको लेना, कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर कंप्यूटर के हार्डवेयर तक उसे पहुंचाना, और उसके बाद जब प्रोसेसिंग होके रिज़ल्ट आता है तो उस रिज़ल्ट को फिर यूज़र के सामने डिस्प्ले डिवाइसेस पे पहुंचाना, और साथ ही साथ जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं आपके कंप्यूटर में उनको मैनेज करना. जैसे इसका नाम ही है ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ये आपके कंप्यूटर को ऑपरेट कराता है. तो द कंप्यूटर इंटरप्रेट्स द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूज़र with the help of an operating system. It is the master program which makes our personal computer alive and helps to run different applications. तो हम इस तरीके से ये कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट है. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर्स, तो ये आपके कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट है और ये आपके पूरे कंप्यूटर को मैनेज करता है और उसको लाइव बनाता है, उसको ऑपरेट कराता है. द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ जस्ट लाइक द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल. Like the principal has various responsibilities regarding managing the school, like supervising student, teachers and workers, maintaining discipline, analyzing exam schedule, timetable, curriculum, meeting parent and visitors. In the same way, a number of services are provided by an operating system. Imagine what will happen if there is no principal in the school and everything will become unorganized. Similarly, if the operating system is not working in the computer, it will not be able to perform any operation. Operating system acts as central coordinator between the hardware and software. ये आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक सेंट्रल कोऑर्डिनेटर जैसे काम करता है. ये बाकी सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कराता है, मतलब सॉफ्टवेयर का एग्जीक्यूशन कराएगा, सॉफ्टवेयर किस तरीके से हार्डवेयर को एसेस करेंगे, ये चीज़ें मैनेज करेगा. दिस इज़ द टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. द हार्डवेयर प्रोवाइड द यूज़र विद द बेसिक फिजिकल रिसोर्सेज टू वर्क अपॉन, and the application or utility software empowered the user to perform a variety of functions on the computer, like solving problem, creating documents and playing games, etc. Now, if we classify the computer, then the computer may be classified in two basic types on the basis of its usability and the way we use our operating system: CUI and GUI. CUI stands for character user interface, or it is also known as command user interface, and GUI stands for graphical user interface. All modern operating systems that we are using nowadays are example of graphical user interface based operating system. We will discuss operating system in full detail in next lesson, but for now let's talk about graphical user interface.
So it is also known as GUI. The operating system is graphic based and interactive in nature. You can use several devices like mouse, keyboard, etc. to interact with the computer. Windows is the most powerful GUI based operating system. तो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस देता है जहाँ पे आप अपने माउस का यूज़ कर सकते हैं और ग्राफिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको ड्रैग कर सकते हैं, whatever. If we talk about character user interface, so it is also known as CUI, and the type of operating system require you to type commands in order to interact with the system, and you cannot use mouse on those operating system. If you want to interact with it, you need to pass command with the help of keyboard only. Unix and DOS are example of CUI based operating system. Now next thing is functions of operating system. So the first function of operating system is processor management. Processor management means हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसर लगा होता है जिसको हम बोलते हैं CPU, और इसका काम ये है हमारे जितने भी इनपुट हम डेटा करते हैं उसको प्रोसेस करना और उसके आधार पे आउटपुट प्रोड्यूस करना. हम ये कह सकते हैं कि CPU और प्रोसेसर इज़ ब्रेन ऑफ और कंप्यूटर. तो प्रोसेसर भी एक हार्डवेयर डिवाइस है, इसको भी इफ़िशिएंटली मैनेज करना हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द वर्किंग ऑफ द प्रोसेसर बाय एलोकेटिंग वेरियस जॉब्स टू इट. It also ensures that the each process and application receives enough time by the processor to function properly. जैसे अगर आपके कंप्यूटर में 10 प्रोसेस हैं, प्रोसेस मतलब प्रोग्राम जो रन कर रहे हों, या 10 जॉब हैं जिन्हें एग्जीक्यूट होना है और प्रोसेसर एक ही है, तो ये मैनेज करता है कि सारे के सारे जॉब्स या सारे के सारे प्रोसेस हमारे प्रोसेसर का सफिशिएंट टाइम पा सकें जिससे उनका एग्जीक्यूशन हो सके. जैसे अगर आपके स्कूल की बात करें, आपके स्कूल में मान लीजिए आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए कुछ ही टीचर्स हैं, या आपके क्लास में जैसे मान लो इंग्लिश पढ़ाने के लिए कोई एक टीचर ही एलोकेटेड है. अब आपके प्रिंसिपल ऐसा शेड्यूल बनाते हैं कि आपको पूरे साल में इनफ टाइम मिल जाए जिससे आपकी क्वेरीज़ भी सॉल्व हो जाए और आप उस सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ सको. तो वैसे ही प्रोसेसर्स को मैनेज करने के लिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है. दूसरी चीज़ है मेमोरी मैनेजमेंट. तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द शेयरिंग ऑफ इंटरनल मेमोरी अमॉन्ग मल्टीपल एप्लीकेशन. It assign memory to various program whenever required. It also frees the memory when it is not in use. तो जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है उसको ये मैनेज करता है. अगर कई सारे एप्लीकेशन एक साथ रन कर रहे हैं तो वो सेम इंटरनल मेमोरी को शेयर कर सकते हैं. और मेमोरी में एलोकेशन और डी एलोकेशन ये दो प्रोसेस होते हैं. एलोकेशन मतलब मेमोरी ऑक्यूपाई करना, और जब उसकी ज़रूरत नहीं है तो मेमोरी को रिलीज़ करना, इसको बोलते हैं डी एलोकेशन. तो दिस इज़ द टास्क ऑफ OS ऑपरेटिंग सिस्टम. अगला है हमारा डिवाइस मैनेजमेंट. तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, IO डिवाइसेस मीन्स इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपके कंप्यूटर से अटैच्ड हैं, उन सबको ये मैनेज करता है. देन आफ्टर फाइल मैनेजमेंट, तो हम अपने कंप्यूटर में जो भी चीज़ स्टोर करते हैं, बनाते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें फाइल्स होती हैं. जैसे अगर हमें कुछ टाइप करना है तो हम डॉक्यूमेंट फाइल बनाएंगे वर्ड में, नोटपैड में. अगर हमको कोई प्रेजेंटेशन बनाना है तो हम पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन फाइल बनाएंगे. अगर हमें कोई गेम खेलना है तो गेम जो हम डाउनलोड करेंगे वो भी एक फ़ाइल है. अगर हम कोई वीडियो देखना चाहते हैं, मूवी देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम वीडियो फाइल रेफ़र करेंगे. तो हर चीज़ जो हमारे कंप्यूटर के अंदर है वो फाइल है, और फाइल्स को इफ़िशिएंटली मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना, दिस इज़ द टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. एन ऑपरेटिंग सिस्टम keeps track of information regarding creation, deletion, transfer, copy, storage of files in an organized way. Next,
एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी, ऑपरेटिंग सिस्टम का ये भी काम होता है कि कंप्यूटर में एरर्स को डिटेक्ट करना और उससे रिकवर करना। तो ये एक सिक्योर तरीका देता है जिससे अगर आप कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो आप एरर्स को डिटेक्ट कर सकें, रिकवर कर सकें। साथ ही साथ ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है जिसमें आपको यूज़र नेम और पासवर्ड के आधार पे आप अपने कंप्यूटर के सिक्योरिटी को मैनेज कर सकते हैं। देन आफ्टर जॉब शेड्यूलिंग इन अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर मल्टीपल प्रोग्राम रन एट द सेम टाइम, जैसे आज की डेट में हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इस पर हम मल्टीपल प्रोग्राम एक साथ रन कर सकते हैं। जैसे हम एक कोई फाइल कॉपी भी कर रहे हैं, साथ ही साथ हम इंटरनेट से कोई चीज़ डाउनलोड भी कर रहे हैं, उसके साथ ही हम कोई गाना भी सुन रहे हैं। मतलब हमने 3 काम एक साथ हम अपने कंप्यूटर में कर रहे हैं। तो इस केस में हम ये कहेंगे हमारा कंप्यूटर मल्टीटास्किंग है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिटरमाइंस विच एप्लीकेशन शुड रन इन विच ऑर्डर एंड हाउ मच टाइम शुड बी एलोकेटेड फॉर ईच एप्लीकेशन टू रन। तो जॉब्स को शेड्यूल करना कि अगर कई सारे प्रोसेस हमारे कंप्यूटर में एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो उनके ऑर्डर को मैनेज करना, दिस इज़ द टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट इज़ रिफर्ड टू एज जॉब शेड्यूलिंग। नाउ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ विंडोज़ एक्सपी, विस्टा 7, 8, 10, ये वर्जन्स हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के। फिर है मैक ओएस को फुल नेम है मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ जनरली यूज्ड इन एप्पल लैपटॉप एंड डेस्कटॉप्स एंड लिनक्स इज आल्सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अवेलेबल ओवर द इंटरनेट। देन आफ्टर नेक्स्ट हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है लैंग्वेज प्रोसेसर। अब देखो लैंग्वेज प्रोसेसर को हम ये भी कह सकते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर या लैंग्वेज कन्वर्टर। जैसा कि अभी मैंने कुछ समय पहले आप लोगों को बताया था कि कंप्यूटर इज़ अ मशीन एंड इट कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वी ट्राई टू गिव एज इनपुट। इट कैन अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी डिजिट, दैट मीन्स 1 and 0 and its combinations. So there may be some way by which our language program or data input by us is converted into computer understandable form, and that is the use of language processor. Language processor converts the program written by us in computer understandable form. So a computer does not understand any other language than the machine language, that is binary language. The programmers use high level language to write programs. These codes need to be translated into binary code which a computer can understand, and this is done by language processor or language translator. अब इसको आगे पढ़ने से पहले आपको 2 कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड क्या होता है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे हम पाइथन में, जावा में, क्यू बेसिक में, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में अगर हम कोई प्रोग्राम टाइप करके बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। और वो प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर में एग्जीक्यूट होता है उसको हम बोलते हैं टारगेट कोड या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट कोड। अब लैंग्वेज प्रोसेसर का काम यही होता है कि सोर्स प्रोग्राम को टारगेट प्रोग्राम में, मतलब ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना। तो इसके लिए पहला जो लैंग्वेज प्रोसेसर है वो है असेंबलर। अब देखो असेंबलर एक ऐसी सॉफ्टवेयर है जिसका काम ये है असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। अब यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि असेंबली लैंग्वेज क्या है। तो देखो जब लैंग्वेजेस कंप्यूटर की बनाई गई तो सबसे पहले बना बाइनरी लैंग्वेज, जो आज भी हमारा कंप्यूटर उसी के आधार पे काम करता है। 0-1 मीन्स ऑन ऑफ, क्योंकि ये मशीन है और कोई भी मशीन 2 ही स्टेट पे काम करता है, ऑन और ऑफ। जैसे फ़ैन है, ऑन करोगे तो हवा आएगी, ऑफ करोगे तो बंद हो जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर में 1010 वोल्टेज फ्लक्चुएशंस से हम कम्युनिकेट करते हैं। तो ये रही बाइनरी लैंग्वेज। फिर बाइनरी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना इज़ वेरी टफ, तो उसके लिए एक लैंग्वेज बनाई गई जिसको बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। फिर असेंबली लैंग्वेज के बाद हाई लेवल लैंग्वेज आए। तो असेंबली लैंग्वेजेस में अगर हमने प्रोग्राम रखा हुआ है, लिखा हुआ है,
उसको अगर हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वी यूज़ assembler. तो assembly language is a low level language where the program uses symbolic representation or names called mnemonics. यहाँ पे देखो m साइलेंट होता है, इसको mnemonics नहीं पढ़ते हैं, mnemonics पढ़ते हैं. Mnemonics instead of numbers. An assembler is a program used to translate mnemonic operation code to their machine language equivalent. Then after next language translator is interpreter. अब देखो दो चीज़ें आएंगी, इंटरप्रेटर और कंपाइलर. इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर बोथ आर यूज टू ट्रांसलेट प्रोग्राम ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, बट इंटरप्रेटर कन्वर्ट the program line by line or statement by statement, and compiler convert all program entire program in one go. Assembly language is a low level language. An interpreter convert a program written in high level language into the machine language program line by line and simultaneously execute the converted line. If any error found, it display the error and does not proceed till the error is rectified. तो देखो इसमें ये होता है कि अगर हमने मान लो कोई प्रोग्राम बनाया जो 10 लाइन का था, जब अगर हम इसको इंटरप्रेट करेंगे तो पहले फर्स्ट लाइन इंटरप्रेटर लेगा, उसको कन्वर्ट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा. अगर उसका एग्जीक्यूशन हो गया, कन्वर्जन सही था, एग्जीक्यूशन सही था, तब वो दूसरी लाइन को लेगा, फिर यही प्रोसेस वो हर एक लाइन के लिए रिपीट करेगा. और अगर किसी भी स्टेप में किसी भी लाइन में कोई एरर मिल जाती है तो वो वहीं रुक जाएगा और तब तक आगे नहीं कंटिन्यू करेगा जब तक कि आप एरर को रेक्टिफाई ना कर लो. द इंटरप्रेटर इज नीडेड इन द मेमोरी अलॉन्ग विद द प्रोग्राम फॉर इट्स एग्जीक्यूशन. दिस इज बिकॉज द प्रोग्राम कैन नॉट रन अनलेस इट इज इंटरप्रेटेड. It is extremely helpful for learners and also in removal of errors. Execution with an interpreter is slow. For example, basic language uses interpreter. We have source code जो भी मैंने बताया, हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम. इंटरप्रेटर से हमने इसको प्रोसेस किया तो कन्वर्ट किया हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन, और अगर कोई एरर आया तो ये एरर को रिपोर्ट करेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में ये इसको कन्वर्ट करेगा. तो दिस इज डिस्प्लेड बाय दिस डायग्राम. नाउ नेक्स्ट थिंग इज कंपाइलर. तो अ कंपाइलर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसफॉर्म्स ह्यूमन रीडेबल सोर्स कोड ऑफ इंटायर कंप्यूटर प्रोग्राम इनटू द मशीन कोड. इट कन्वर्ट द इंटायर प्रोग्राम एट वन गो. एक बार में ही ये पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है. नो मैटर यू आर हैविंग अ प्रोग्राम ऑफ 10 लाइन्स, 100 लाइन, 1000 लाइन और लैक्स ऑफ लाइन्स, it will convert entire program in one go. If an error is found, it gives the error list along with the line numbers. Once the error is removed, the compiler compile the program. Compiler is not needed in the memory after compilation. और एग्जीक्यूशन यहाँ पे बहुत ही फास्ट होता है, जैसे C++ में, C में, इन सारे लैंग्वेजेस में कंपाइलर्स का यूज़ किया जाता है. अब यहाँ एक क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि विच वन इज़ बेटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर. तो वो कहावत है ना, जहाँ काम आवे सोई कहाँ करे का तलवार. तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि दोनों का अपना अलग यूज़ है, अलग एरिया ऑफ एप्लीकेशन है. अगर हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, हमने मान लो 100 लाइन टाइप किया और कंपाइल किया और देखे कि हमने 50 एरर उसमें आ गए, अब उन एरर्स को ढूंढना और दूर करना इज़ टफ. रदर देन अगर हम प्रोग्राम बनाते समय, जैसे मान लो हमने 2 लाइन लिखा, इंटरप्रेट किया, 2 लाइन में कोई एरर थी उसको हमने दूर कर लिया, फिर 2-3 लाइन और ऐड की, फिर इंटरप्रेट किया, फिर उन एरर्स को दूर कर लिया. और इस तरीके से अगर हम प्रोग्राम बनाएंगे तो जब लास्ट में प्रोग्राम हमारा बन के आएगा तो उसमें एरर्स नहीं होंगे. तो इंटरप्रेटर्स आर फेवरेबल फॉर बिगिनर्स और व्हेन वी आर इन डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर. जैसे हम सॉफ्टवेयर बना रहे हों तो हम इंटरप्रेटर का यूज़ करते हैं, और एक बार जब पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, एरर नहीं होता है, तो हम उसको कंपाइल करते हैं और फाइनल जो रिज़ल्ट है वो सॉफ्टवेयर के फॉर्म में उसका यूटिलाइजेशन करते हैं. नाउ नेक्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ डिवाइस ड्राइवर. तो देखो डिवाइस ड्राइवर स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे नाम से क्लियर है, ड्राइवर का काम क्या है, ड्राइव करना, चलाना किसी भी चीज़ को. जैसे कार है, कार अपने से नहीं चलेगी, एक ड्राइवर की ज़रूरत होगी उस कार को ऑपरेट करने के लिए. वैसे ही जितने भी डिवाइसेस हमारे पास है और जो भी डिवाइसेस हम पेरीफेरली अपने कंप्यूटर से अटैच करते हैं, मतलब बाहरी तरीके से कंप्यूटर से अटैच करते हैं, लाइक पेन ड्राइव हो गया
या कोई भी, या प्रिंटर हो गया, उसको लगाते समय हमें डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करना होता है। कुछ के डिवाइस ड्राइवर हमारे डिवाइसेस में ही होते हैं, जब हम प्लग करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं और फिर हम उसको यूज़ कर पाते हैं, और कुछ के हमें खुद से एक्सटर्नली इंस्टॉल करने होते हैं। तो these are the special program which control the execution of a particular hardware device. They are used to convert the instruction given by the operating system into commands that can easily be interpreted by the specific hardware device. Whenever we purchase a new hardware, for example, we purchase a printer, we need to install the printer software with an installation disk. This load the new driver into operating system and enable us to use the hardware. तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई भी डिवाइस ख़रीद के लाते हैं, उसको अगर हमें यूज़ करना होता है तो उसके सॉफ्टवेयर्स, मतलब उसके डिवाइस ड्राइवर हमको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने होते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो कि अगर आपके पास एक पेन ड्राइव है, आप देखे होगे कि पेन ड्राइव 8 GB का है, बट 7 पॉइंट समथिंग ही यूजेबल होता है, और बाकी स्पेस क्या होता है, वो डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर के लिए ही एलोकेटेड होता है, जिसको हम यूटिलाइज़ करते हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो देखिए, यूटिलिटी आर द प्रोग्राम दैट सपोर्ट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज आर स्पेशली डिजाइंड टू हेल्प द एंड यूजर मैनेज एंड ट्यून द कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड परफॉर्म सिंगल टास्क एट अ टाइम। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हमारे काम को आसान बनाने के लिए होती हैं, फंक्शनिंग को स्मूथ बनाने के लिए होती हैं, और ये बनाई जाती हैं स्पेसिफिकली कि यूज़र्स मैनेज कर सकें और कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को ट्यून कर सकें कि किसी एक पर्टिकुलर टास्क को अच्छे तरीके से परफॉर्म किया जा सके। द यूटिलिटी दैट यू यूज़ डिपेंड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग ऑन योर कंप्यूटर। सम यूटिलिटी हेल्प यू टू अवॉइड वायरस अटैक or clean virus like antivirus. Some are used to backup data, some are used to recover data, etc. तो सबसे पहला यूटिलिटी जो यहाँ पे आता है वो होता है हमारा बैकअप। तो देखो, बैकअप होता क्या है, पहले ये समझो कि जैसे मान लीजिए हमारा जो कंप्यूटर है वो मशीन है, और कभी ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल पावर फेल्योर के कारण या कंप्यूटर क्रैश होने के कारण हमारा जो डेटा इसके अंदर स्टोर है वो लॉस्ट हो सकता है। तो जो हमारे बैकअप एक तरीका है जिससे हम क्या करते हैं, अपने डेटा का एक और रिप्लिका क्रिएट करते हैं, एक और कॉपी क्रिएट करते हैं, जिसको अगर किसी भी अनफॉर्सिनेबल सिचुएशन में हमारा डेटा अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो हम उससे अपने कंप्यूटर को रिकवर कर सकते हैं। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग डेटा इन केस ऑफ डैमेज और एक्सीडेंटल लॉस। एट टाइम्स द हार्ड डिस्क ऑफ अ सिस्टम फेल्स or loses all the files stored in it, so an intelligent user keeps his file in backup storage devices in order to restore original file. At the time of such failure, the current version of Windows has backup facility to make copies of data, files, folder, driver, etc. on a regular schedule. तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसका काम ये होता है आपके कंप्यूटर में बैकअप लेना और उसको रेगुलरली मैनेज करना। देन आफ्टर है हमारा सिस्टम रीस्टोर। तो इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ बैकअप, ये पूरक है बैकअप का कि एक बार हमने बैकअप कर लिया, अब अगर कभी कोई समस्या आई तो उस बैकअप से हम अपने सिस्टम को रीस्टोर कर सकते हैं। तो इट इज़ अ यूटिलिटी इन विंडोज़ टू रीस्टोर योर कंप्यूटर सिस्टम फाइल्स टू एन अर्लियर पॉइंट इन टाइम. It is a way to undo the system changes in your computers without affecting your personal file, email, document and photograph. नेक्स्ट है हमारा कंप्रेशन। अब देखो, कंप्रेशन से हम क्या करते हैं, फाइल की साइज़ को छोटा करते हैं। जैसे मान लो कोई हमने फाइल बनाई है जो 1 GB का है, कंप्रेस करेंगे, छोटा करेंगे तो उसकी साइज़ कुछ सेवरल MB कम हो जाएगी, जिससे उसको हम आसानी से कहीं ट्रांसपोर्ट कर सकें, सेंड कर सकें। तो compression is a technique which is used to compress files. It helps to reduce the consumption of storage space and ensures faster data transfer. We can compress multiple files or folders into a single file which is stored in different format. इसके लिए जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है वो है WinZip, WinRAR, etc.
देन आफ्टर है डिस्क मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर्स। तो डिस्क मैनेजमेंट की यूटिलिटी में सबसे पहला आता है डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन। अब देखो डीफ्रैगमेंटेशन क्या होता है। डीफ्रैगमेंटेशन से पहले आपको फ्रैगमेंट समझना होगा कि हमारी जो हार्ड डिस्क है उसमें हम अलग अलग फाइल्स स्टोर करते हैं और स्टोर करते जाते हैं। तो एक समय ऐसा आता है कि हमारी हार्ड डिस्क फुल होने लगती है। अब हम अपने कंप्यूटर से कुछ फाइल्स को डिलीट करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे होता क्या है कि जैसे मान लो हमने 10 फाइल स्टोर की, ऐसे कि फर्स्ट फाइल, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड सो ऑन टू 10th। अब मान लो हमने सेकेंड फाइल डिलीट कर ली, फिफ्थ फाइल डिलीट कर ली, 8th फाइल डिलीट कर दी, तो हमारे पास 3 जगह पे मेमोरी स्पेस हो गए। अब मानो कि जो मेमोरी स्पेस हैं वो जो हमने सेकेंड फाइल डिलीट की है वहाँ पे 200 MB है, जो फिफ्थ फाइल डिलीट की है वहाँ पे 500 MB है, और बाकी जो फाइल डिलीट की है लास्ट में 8th फाइल वहाँ पे अगर मान लो 300 MB है। तो 200 300 300 मतलब टोटल हमारे पास 800 MB का स्पेस अवेलेबल हो गया। अब अगर हम कोई 500 MB की फ़ाइल स्टोर करना चाहेंगे तो चूँकि वो जो स्पेस है वो एक जगह पे नहीं है, तो हमें उसको फाइल को अलग अलग पार्ट में बांट के स्टोर करना पड़ेगा, जिससे हमारा टाइम कंजप्शन ज़्यादा होगा। इसी को हम बोलते हैं फ्रैगमेंट। मतलब मेमोरी अवेलेबल है लेकिन अलग अलग जगह पे स्कैटर्ड है। डीफ्रैगमेंटेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम छोटे छोटे मेमोरी स्पेसेस को मिला के एक बड़ा फ्री स्पेस बनाते हैं। तो the storage of a file in several non-contiguous areas of a disk rather than a single contiguous unit is called disk defragmentation. When a file is stored on a disk, the operating system searches for the first available free block on the disk and stores the file there. If the file is too large for one block, the OS searches for the next free block and store the next part of the file. These blocks may not be in contiguous form or may be scattered over the disk. This fragmentation slows down the retrieval of data. चूँकि हम अलग अलग जगह पे हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो जब डेटा हम रिट्रीव करना चाहेंगे, उसको फेच करना चाहेंगे, तो प्रोसेस हमारा स्लो हो जाएगा। So to remove this file fragmentation, a disk defragmenter program is used that rearrange all files and directories in one contiguous area of disk and consolidate the free space in one contiguous block. तो ये होता है हमारा डिस्क डीफ्रैगमेंटर। दूसरी चीज़ होती है हमारी डिस्क क्लीनअप। तो इट सर्चेस द कंप्यूटर हार्ड डिस्क फॉर अननेसेसरी फाइल that are not being used for a long period of time and occupying huge amount of space. It helps to free up disk space by deleting these files, and which can be of the following type: temporary internet file, downloaded program file, recycle bin file or Windows temporary file. तो ये जो डिस्क क्लीनर है ये क्या करता है, कॉम्प्रेस्ड फाइल को, पुरानी फाइल्स को, ओल्ड फाइल को जो हम यूज़ नहीं करते हैं उन फाइल्स को आपके कंप्यूटर से डिलीट कर देता है और मेमोरी स्पेस को फ्री करता है। नाउ नेक्स्ट हमारा सॉफ्टवेयर है वायरस स्कैनर और क्लीनर, या इसी को हम बोलते हैं एंटीवायरस। अब एंटीवायरस आई डोंट थिंक सो कि ये आप लोगों को नहीं पता होगा। ऑल ऑफ यू आर अवेयर विथ antivirus. So in today digital era where all the work is being done on computer, it is imperative for us to safeguard our data from virus. A virus is a malicious program that replicates itself and make the computer unstable. Antivirus software or virus scanner are computer programmed to identify, prevent and remove viruses from your computer. They perform 3 basic tasks. First, scan the computer files to look for virus. आपके कंप्यूटर को ये स्कैन करता है। Second, identify suspicious behavior of other computer. अगर आपके कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क में है तो उसके सस्पिशियस बिहेवियर को आइडेंटिफाई करता है एंड रिमूव द प्रोग्राम विच इंडिकेट इन्फेक्शन। तो जहाँ पे इन्फेक्शन मिलता है उसको ये रिमूव करता है। So we must remember that having an antivirus software in our computer does not guarantee the 100% protection from virus, as installed antivirus program would not be able to detect new kind of
virus program. So we keep on updating our computer with the latest version of antivirus from the internet. जैसे अगर कोई डॉक्टर है जिसने 20 साल पहले पढ़ाई की तो उस समय के जो बीमारियां थी उसको तो वो क्योर कर सकता है, लेकिन आज के डेट में जो नई नई बीमारियां आ रही हैं उसको अगर उसे क्योर करना है तो उसको अपने आप को अपडेट करते रहना होगा, नई नई बीमारियों के बारे में पढ़ना होगा, तब वो उन चीज़ों को कर पाएगा, उनको उन बीमारियों को क्योर कर पाएगा। तो वैसे ही जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है इसको भी हमें रेगुलर बेसिस पे अपडेट करना होता है। कुछ पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स के नाम यहाँ दिए गए हैं, उनके सिंबल्स दिए गए हैं, जैसे नॉर्टन, मैकेफे, एवीजी, क्विक हील एंड कैस्परस्की। तो ये वेल नोन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। देन आफ्टर वी आर हैविंग इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन टूल्स। अब देखो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या होता है कि ये दोनों टर्म क्रिप्टोग्राफी के अंदर आते हैं। इनक्रिप्शन को इनकोडिंग भी बोल सकते हैं और डिक्रिप्शन को डिकोडिंग भी बोल सकते हैं। तो इनक्रिप्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने डेटा को, अपने इंफॉर्मेशन को एक ऐसे फॉर्म में चेंज कर देते हैं जिसको कोई दूसरा अगर देख भी ले, रीड भी करे तो भी वो समझ ना पाए। इसको हम बोलते हैं इनक्रिप्शन, और इसका जो रिवर्स प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं डिक्रिप्शन। अब देखिए यहाँ पे दो टेक्स्ट होते हैं, एक होता है प्लेन टेक्स्ट और एक होता है सीफर टेक्स्ट। तो वो टेक्स्ट जो हम लिखते हैं उसको बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट, जैसे इंग्लिश में हमने कुछ लिखा इसको बोलेंगे प्लेन टेक्स्ट, और जब उसको हम इनक्रिप्ट कर देंगे तो जो टेक्स्ट बनेगा उसको बोलेंगे सीफर टेक्स्ट। तो ये दो टाइप के टेक्स्ट हैं, इसी के बीच में हमारा कन्वर्जन होता है। तो encryption is the process of conversion of data into a form that cannot be easily understood by anyone except those possessing spatial information, usually referred to as a key. This is done using algorithm called cipher. The result of the process in encrypted information referred to as cipher text. Encryption is primarily used in defense services. It is even used in civilian system like online banking, e-commerce, mobile services, etc. to facilitate secret communication and privacy of data. आज के डेट में कभी आप लोग देखते होंगे कि किसी को व्हाट्सएप करना स्टार्ट करते हो तो व्हाट्सएप करने जब आप जाते हो तो उसमें लिख के आता है कि दिस मैसेज इज़ प्रोटेक्टेड बाई लिंक टू लिंक इनक्रिप्शन। तो वहाँ पे भी इनक्रिप्शन होता है कि कोई थर्ड पर्सन जो आपके ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है वो अगर मान लो अनइंटेंशनली या इंटेंशनली आपके इन मैसेजेस को देखना चाहे तो भी वो नहीं देख सकता है। तो दैट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ इनक्रिप्शन। एंड डिक्रिप्शन is the process of converting the encrypted data back into original form so that it can be understood by anyone, that is to make it unencrypted. So you can visit http://www.encryptionanddecryption.com to know more about the encryption and decryption and download free and professional softwares for the same. So that's all for this video. In next video we are going to talk about application software. Thank you.